So let's start with our next lecture series of Unit 3 from DAR Design and Analysis of Algorithm. The unit is Greedy and Dynamic Programming. And today's topic is Optimal Binary Search Tree using Dynamic Programming. In today's lecture, we are going to see how to solve OBST problem using dynamic programming. A very easy way. But before starting to solve the OBST, you should know what is exactly is a OBST. So OBST is optimal binary search tree. Suppose example, the numbers given to you is 3, 7, 9, and 12. And you have to draw the binary search tree for this. Okay. So there can be different options to draw this, like option A. First will be like this. Every so numbers at right side, this can be a second option, this can be third option, this can be fourth option. There are n number of options that you can try for this. So how you can say like this, which tree is a optimal? So how to find out that? So for that they have given, like suppose for do, for, while, void, if, these are the 5 identifiers and you have to draw the tree. So this is a one way to draw the tree, this is a second way to draw the tree. Now how to find out which one is best? So we have given here the depth of each and every identifier. Like here we require one search to search the for term. For to do, we have to search the like it is at a 2 level, again this is at a 2 level, this is at the third level, this is at a fourth level. Means how many comparisons you have to do. If I add all this number here, okay, and total number of identifiers are 1, 2, 3, 4, 5, that is divided by 5. So total average comparison, number of comparison is 2.4 in case of first tree. If I talk with the second tree, here it is 1, 2, 2, 3, and 3. So if I add this, the average of this number will be 2.2. So we can, by comparing these two value, we can say that yes, 2.2 is less than 2.4. So this particular tree is more better than this one. So this is how we can say that we can compare and say that which tree is optimal tree. Now, whenever you are drawing a tree, there are two cases, like successful search and second is called as a unsuccessful search. So when you are searching something, if you got a identifier, so there is some, we call it as a successful search. So these are all are successful search. But when like you are searching after it, if you are going at a left side, so you don't find anything. Okay, so this we call as a unsuccessful search. सो हर ट्री के लिए, हर एक नोड के लिए जहां पे भी कुछ नहीं है, तो लीफ नोड वी कॉल इट एज अ अनसक्सेसफुल सर्च. सो फॉर एवरी ट्री इफ यू सी, like successful search is like 1, 2, 3, and 4. So to quantity is 4. So the unsuccessful search quantity will be like 1, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so unsuccessful search will always a 1 greater than the successful search. So successful search is denoted as a P and unsuccessful search is denoted as a Q in example whatever we are going to solve. So here the successful search P, it gets start with 1 to n, and unsuccessful search Q start with 0 to n. So the value of Q is n plus 1, and the addition of probability of successful plus unsuccessful always gives a value as a 1. So now let's start with our example. But before starting with example, we require some of the formulas which are very important to solve. Very first formula is a weight. Then second one is weight is denoted as W. Second is cost denoted as C. And third is root denoted as R. So to find out a value of W, Wij, the formula is P of J plus Q of J plus Wi comma J minus 1. Likewise, they have given the formula for C. They have given the formula of R. So जैसे से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, you will get understood कि ये वाले फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं. Again, very important thing you should know is that when the value of C and both the term are same, जैसे अगर हमने ले लिया C11 11 या फिर C22 that is C22, तो ये दोनों पोजीशन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है.
सेम ऐसे ही अगर आर में दोनों पोजीशन की वैल्यू और डब्ल्यू में दोनों पोजीशन की जो वैल्यू है वो अगर सेम है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, दे हैव गिवन इफ सी विथ सेम values here, you have to put a zero. Again with r you have to put a zero. And for w, if the value of like w11 or w22, so if these two values are like same to each other, so just put the value of qi there. So we'll start with an example. So in example they have given there are total four number of objects are given. So four number, the value is do, if, int and while. And with every identifier or number they have given the successful probability. So it's a 3, 3, 1, 2, and unsuccessful probability. We know if it is a 4, it will be the 5, which is starting with 0 going up to 4. So this is an unsuccessful probability. 5 values are given and we have to draw a OBST, optimal binary search tree, with minimum cost using this 4 identifier. So let's start with the example. So before starting the example, you have to draw such kind of square here. So like we have total uh, the values of q. If I go here, so you can see the values of q are going from 0 to 4. So just check out कि q की जो value है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया it is going from 0 to 4. So same you have to draw like 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, and again 0, 1, 2, 3 and 4. So 0 से लेके 4 तक रोज एंड कॉलम में आपको लिख लेना है, लेकिन टेबल जो है ये पूरा आपको सब में सेम रोज एंड सब में सेम कॉलम नहीं है. लाइक इन फर्स्ट रो यू विल हैव द 5 कॉलम्स. ओके, 5 सेल्स है. सेकेंड में 1 कम है, नेक्स्ट में खाली 3 आएंगे, नेक्स्ट में 2 एंड लास्ट विल बी ओनली 1. सो लाइकवाइज जस्ट ड्रॉ दिस काइंड ऑफ टेबल. नाउ व्हाट टू पुट इन दिस टेबल. सो इस टेबल में आपको वैल्यूज जो है ये पुट करनी है. तो हर एक जो सेल है, सो इन एवरी सेल यू हैव टू पुट अ वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, सी एंड आर. हर जगह पे अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू, सी एंड आर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. नाउ व्हाट नंबर्स यू हैव टू पुट देयर. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या नंबर है जो इसके आगे आपको लगाना है. तो फर्स्ट रो जो होती है हियर इट इज लाइक all values are similar, means it is starting with 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4, 4 similar. So यहाँ पे ये सारे values अगर आप देखोगे, so it's all are 0, 0, 1, 1, 2, 2 likewise. So this is how you have to make a first row. Now when I talk about the second row, so in second row it will be like as it is a zeroth column, so here first value will be 0 and it is a first row, so this value will be first 0, 1. Okay, 0, 1, 0, 1. So likewise 0, 2, 0, 2, 0, 3, then 0, 3 and 0, 4. So ये फर्स्ट कॉलम इसकी वैल्यू 0 है, तो ये आएगा 0, 0, 0, देन यहाँ पे आ गया 0, 1, यहाँ पे आ गया 0, 2, 0, 3, 0, 4. लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट अ सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम जैसे स्टार्ट हो रहा है ये फिक्स है, 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है. अगर यहाँ पे 1, 1 है तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 1, 3 एंड देन 1, 4. फर्स्ट वैल्यू हमेशा सेम होती है कॉलम में, खाली सेकेंड वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होते जाती है. अब यहाँ पे इट इज गेटिंग स्टार्टेड विथ 2, 2, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 हमेशा कॉमन रहेगा, तो 2, 3 एंड देन इट्स विल बी 2, 4. Next, as it is W33, it will get 3, 4. And here again only W44. So this is how you have to make a table. After that, you have to solve this table row by row. Means you have to first find out the first row value, then second row, then third row, fourth row, and fifth row. So whenever I want to find out a first row value find out करना बहुत easy है, क्योंकि first row अगर आप check करोगे तो these two values are similar. Okay, means 0, 0, 1, 1, 2, 2. So in that case, we have seen the formula like for C, if these two values are similar, put directly 0. If for R, if the two values are same, 0, 0 like, so put the value 0, 0. Okay, but only for W. WII means जैसे W 0, 0. So you have to put a value of QI. तो जैसे I मतलब क्या, यहाँ पे value क्या है, 0 है.
तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, Q0 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे W11 है, मतलब I की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे Q1 की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे Q2 की वैल्यू, हियर Q3 वैल्यू एंड हियर Q4 वैल्यू। मीन्स अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी का जो एग्जाम्पल में हमको ऑलरेडी जो वैल्यूज दी है, जस्ट यू हैव टू पुट दैट वैल्यूज। ओके, सो आफ्टर दैट यू गेट दिस वैल्यूज। यहाँ पे सारी जगह पे क्या आ गया है, यहाँ पे सब जगह पे 0 0 आ गया है यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड यहाँ पे डब्ल्यू में जो क्यू की वैल्यूज है, ये फॉर्मूले से हमने वहां पे क्या किया है, पुट किया है। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट row is completed. Okay, now we have to find out the values of second row. So second row you have to start with the first cell, then second cell likewise. So अब यहाँ पे हमको जो पहले वाला फॉर्मूला है वो नहीं चलेगा, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में क्या था कि ये दोनों वैल्यू सेम है तो ही यूज होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज अ 0, दिस इज 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, सो दीज टू वैल्यूज आर नॉट common, not same. So we have to use the another formula. Okay, so here the formula we have to use to find out the value of W is Wij equal to Pj plus Qj plus W of I comma j minus 1। ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमको पुट करना है। एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, we have to put a formula of minimum of C of I comma k minus 1 plus C of k comma j। ओके, इन दोनों में से ये जो भी है, इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगी वो लेना है, और इसके साथ W ऑफ आई जे को एडिशन करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट रो, जो हमको यहाँ पे जैसे फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे क्या है हमारी, W01, C01 एंड R01, तो तीनों की वैल्यूज हम निकालेंगे। सो कैसे निकालना है, ओके, सो यहाँ पे मैंने P और Q की वैल्यू जो है वो लिख ली, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व the values. The formula to find out W is I have just write down here. तो अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट पोजीशन जो थी टेबल में वो क्या थी, W01, दिस इज अ पोजीशन। तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, और J की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो फॉर्मूला क्या है, PJ। तो J मतलब क्या, यहाँ पे J की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आ गया P1। QJ मीन्स Q1 प्लस I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, सो W0 देन J माइनस 1। तो J की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 हो गया। So this is how you should know, like this always you have to consider this is an I value, and this will be always your J value. So using this values, put these values in the given formula, you will get this. Now find out the value of P1. So P1 की वैल्यू यहाँ पे टेबल में 3 दी है, Q1 की वैल्यू जो है सेकेंड पोजीशन की 3 दी है, एंड W00, अब ये W00 आपको कहाँ मिलेगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने ये टेबल बनाया था। ओके, सो टेबल हमेशा आपको लगने वाला है। सो W00 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 2 थी। सो फ्रॉम टेबल वी हैव टेकन दिस वैल्यू एंड we got a value as 3 plus 3 plus 3 2 equal to 8। तो W01 की वैल्यू मिल गई। Likewise we have to find out value of C of I J। so यहाँ पे I और J यानी क्या है, C of 01। हमेशा अगर W के लिए 01 ले रहे हैं तो C की भी 01 की वैल्यू निकलेगी, R की भी 01 की वैल्यू निकलेगी। फॉर्मूला क्या है, मिनिमम, तो मिनिमम लिख दिया। ओके, और यहाँ पे मिनिमम के नीचे हम किसकी वैल्यू लेते हैं, K की वैल्यू। K की वैल्यू हमेशा I से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और J से आइदर लेस या फिर इक्वल हो सकती है। सो वी हैव टू कंसिडर दिस, सो वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला हियर K। ओके, K की वैल्यू I से ग्रेटर, अब इस केस में I की वैल्यू क्या आई है 0, इसलिए हमने 0 लिख दिया है यहाँ पे। एंड लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए हमको, J। तो अब इस केस में J की वैल्यू क्या है 1, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सो आफ्टर दैट ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे, C इन ब्रैकेट I कॉमा K माइनस 1। तो I की वैल्यू क्या है 0, तो 0 ले लिया हमने। उसके बाद K माइनस 1। अब K की वैल्यू कौन सी होगी, हमको K की कैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 से आइदर लेस या इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी एक ही वैल्यू है, क्या वैल्यू है कि K की वैल्यू क्या हम लेंगे यहाँ पे, K शुड बी इक्वल टू 1। अगर हम K की वैल्यू क्या लेते हैं, इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो वो इस कंडीशन को ट्रू करती है।
सो इसके लिए k की वैल्यू 1 हो गई, तो k माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 यानी क्या आ गया, 0 आ गया। सो C00 प्लस C ऑफ k माइनस j। अब k की वैल्यू हमको पता है, हमने 1 ली है, सो आई हैव पुट हियर 1 एंड आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ j। तो j की वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाली है, वो हमने पुट कर दिया। ओके, आफ्टर दैट w ऑफ ij मीन्स 0 एंड 1, सो w ऑफ 0 एंड 1 पुट कर दिया। तो अब C00, C11 एंड W01 ये तीनों वैल्यूज हमको कहाँ से मिलने वाली है, जो हमने टेबल यहाँ पे बनाया हुआ था फर्स्ट, इसमें यहाँ से हमको मिलेगी। तो जहाँ पे हमको मिल गई यहाँ पे C00 की वैल्यू या फिर C11 की वैल्यू जो भी है, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे क्या है, 000 आई हुई है। ओके, खाली W की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से फर्स्ट इससे यानी जो Q की वैल्यू इसमें से हम यहाँ से कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ से वो वैल्यू लेंगे, वो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। C00 की वैल्यू 0 आ गई, C11 की वैल्यू 0 आ गई। अब दोनों ही वैल्यू 0 0 है, तो इसमें से मिनिमम कुछ निकलेगा ही नहीं, मिनिमम विल बी 0। एंड W01 जो है ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, इसकी वैल्यू 8 है, जो हमने ये फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दी। तो वी गॉट अ वैल्यू ऑफ C01 एज 8। और ये वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन से k की वैल्यू को कंसिडर किया था, तो k की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी। तो k की जो वैल्यू होती है वही हम r को एज इट इज असाइन करते हैं। तो यहाँ पे r इक्वल टू k फॉर विच द वैल्यू ऑफ c i j इज स्मॉल। नाउ इन आवर केस बोथ द वैल्यूज आर सिमिलर, सो वी कैन डायरेक्टली पुट जो भी k की वैल्यू हमने कंसिडर की थी, क्या की थी, 1 कंसिडर की थी, तो R01 क्या हो गया, 1 हो गया। सो जैसे मैंने फर्स्ट वाला रो का सेकेंड रो का फर्स्ट सेल जैसे सॉल्व किया, ये पोजीशन, ऐसे आप सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, ये चारों के चारों पोजीशन सेम सीक्वेंस से या सेम फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ W, C and R. So after you get this value, you just put this value in your second row. तो second row में हम लोगों ने values put कर दी है. Now in next step, we have to put a value for third row. So in third row, we have to again start with the first cell, that is W0, T02, C02 and R0 through 2. After that second cell and then third cell. Okay, तो first cell जो है उसको हम देखेंगे W02. So again W02, तो यहाँ पे 0 यानी क्या हो गया हमारा, I हो गया, एंड 2 ये क्या हो गया हमारा, J हो गया। ओके, तो ये I और J की वैल्यू ये फॉर्मूले में डाल दी, PJ मीन्स आ गया P2, QJ मीन्स आ गया Q2 प्लस WI कॉमा J माइनस 1। तो I की वैल्यू 0 है वो लिख दी, J माइनस 1, J की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 यानी W01। तो P2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है जो हमने एज इट इज लिख दी। Q2 की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है जो हमने यहाँ पे लिख दी है, प्लस W ऑफ 02 की जो वैल्यू है हमने टेबल में ऑलरेडी निकाली हुई है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये वाले टेबल में, तो W01 की वैल्यू क्या आई है, 8 आई हुई है, वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी है। सो वी गॉट अ वैल्यू एज अ 12 फॉर W02। फॉर फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ C, तो अब यहाँ पे C क्या आ गया, 02 आ गया। तो K के लिए फॉर्मूला क्या है, K की वैल्यू I से ग्रेटर होनी चाहिए, J से लेस या फिर इक्वल, दोनों हो सकती है। सो द वैल्यू ऑफ K शुड बी ग्रेटर देन 0, बट इट कैन बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 2। तो कौन से वैल्यूज है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमको पता है अगर मैंने K की वैल्यू 1 ले ली तो ये 0 से ग्रेटर हो गया और 2 से लेस हो गया, तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैंने k की वैल्यू 2 ली, स्टिल इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज है, k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 2। तो पहला जो सेल है ये हम k इक्वल टू 1 को कंसिडर करके लेंगे, यहाँ से k इक्वल टू 1 को कंसिडर करके निकालेंगे, और यहाँ पे हम k इक्वल टू 2 को कंसिडर करके ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल के इसको क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। सो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे हमने k की वैल्यू 1 ली है
ओके, और यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 2 है। सो ये वाले फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया सी ऑफ आई कॉमा के माइनस वन। सो आई इज 0, जो हमने 0 एज इट इज लिख दिया, के माइनस वन, तो के हमने कंसिडर 1 किया है, तो 1 माइनस वन क्या आ गया, 0 आ गया। प्लस आगे क्या है, सी ऑफ के कॉमा जे। ओके, तो के की वैल्यू के 1 है एज इट इज लिख दी, और जे की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो 2 लिख दी यहाँ पे। लाइकवाइज अगर हम k इक्वल टू 2 अभी कंसिडर करते, k इक्वल टू 1 कंसिडर कर किया, अभी k इक्वल टू 2, और i की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, और j की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। ओके, वापस सेम यही फॉर्मूले में वो ये तीनों वैल्यूज पुट किए। आई और जे हमेशा सेम रहने वाला है, खाली अभी के की दो वैल्यू मिल गई है, के इक्वल टू 1 जिसके लिए एक निकाला, के इक्वल टू 2 उसके लिए हम ये निकालेंगे। तो के इक्वल टू 2 के टाइम पे आई जो है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। आफ्टर दैट के माइनस वन, तो के कितना है इस केस में, 2, सो 2 माइनस वन विल बी द 0। प्लस नेक्स्ट क्या है, सी ऑफ के कॉमा जे, तो सी ऑफ के यानी क्या, सी ऑफ 2, और जे की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो यहाँ पे 2 ले लिया हम लोगों ने। और इसको ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट जो है, क्योंकि हमको इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा कर्ली ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया, और इसके साथ प्लस डब्ल्यू ऑफ आई जे, मीन्स डब्ल्यू ऑफ यहाँ पे जो वैल्यू होती है जनरली वही वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, दैट इज W02। अभी ये वाला जो वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज जो हमारा प्रीवियस जो मैंने टेबल बताया उस टेबल में से आपको देख के लिखना है। ओके, सो वी रिटर्न द वैल्यूज हियर। सो हियर वी गॉट द वैल्यूज लाइक, फॉर दिस इट इज अ 0 प्लस 7, एंड फॉर दिस इट इज अ 8 प्लस 0। तो ऑब्वियसली इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 7, ये वैल्यू मिनिमम है, तो हमने खाली 7 को कंसिडर किया, इसको निकाल दिया। इसके साथ क्या करना है, इसकी वैल्यू प्लस करनी है, मीन्स 12 को प्लस किया। सो 7 प्लस 12 हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 19 आ गया। तो ये हो गया k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 2 के लिए। तो किसकी k इक्वल टू 1 जब था तब ये वैल्यू हमने क्या की, मिनिमम कंसिडर की। इसके लिए r यानी क्या, k की वैल्यू जिसके लिए c ऑफ i j की वैल्यू स्मॉल थी, तो किसके लिए स्मॉल थी, c k की वैल्यू 1 के लिए, इसके लिए r 0 टू ये पोजीशन क्या आ गया, 1 आ गया। सो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दी, लाइक 12, 19 एंड 1। सो सेम जैसे हमने 0,2 सॉल्व किया, वैसे आपको 1,3 सॉल्व करना है। तो जब आप 1,3 सॉल्व करेंगे, सपोज सी ऑफ 1,3, तो ये केस में के की वैल्यू क्या होगी, के के लिए फॉर्मूला क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन आई एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जे। ओके, तो हमारे केस में आई क्या है, 1, तो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, और क्या हो सकती है, के की वैल्यू 3 हो सकती है। सो 2,3 आएगा। सेम इस केस में क्या आएगा, 3,4, ये दो के की वैल्यू आएगी। सो सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करके यू विल गेट दिस वैल्यूज ऑफ दिस टू सेल। नाउ वी हैव टू सॉल्व द फोर्थ रो, नेक्स्ट रो जिसमें W ऑफ 0, 3 एंड 1 एंड 3 है। सो अभी W ऑफ आई जे मतलब W ऑफ 0, 3, अगेन दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जे। सो ऐसे ही आई और जे के वैल्यू हमने ये फॉर्मूले में पुट किए, हमको वैल्यूज मिल गए, यहाँ पे 14 आ गया। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी ऑफ आई कॉमा जे। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो के हमको 3 वैल्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 3 से लेस और इक्वल होनी चाहिए, तो के विल बी 1, के कैन बी इक्वल टू 2, के कैन बी इक्वल टू 3। तो पहली बार इस फॉर्मूले में के इक्वल टू 1 डाल के हम लिखेंगे, देन के इक्वल टू 2 डाल के और के इक्वल टू 3 डाल के। आई और जे हमेशा सेम रहने वाला है, 0 एंड 3। तो के इक्वल टू 1 जब करेंगे तो हमको मिल गया, ये फॉर्मूले में डालेंगे तो C00 प्लस C13, सो लाइकवाइज सेकेंड एंड थर्ड वन मिल गया। और यहाँ पे W03 यानी कि जो प्रीवियसली हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली होती है वो। अब इन तीनों केस में जो मिनिमम है, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 19। तो तीनों में से स्मॉल कौन सी है, 11 वैल्यू है वो हमने कंसिडर की, उसके साथ ये 14 जो है ऐड किया, 25 आ गया। तो अब ये कौन से के लिए हमको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है, ओके, ये 2 के लिए, जब के की वैल्यू क्या थी, 2। क्योंकि के की वैल्यू जब 1 थी तो हमको 12 मिल रहा है, के की वैल्यू 2 थी तब 11 मिल रहा है, और के की वैल्यू 3 थी तब हमको 19 मिल रहा है। तो के की वैल्यू जब 2 थी
तब हमको मिनिमम वैल्यू मिली है इसके लिए। अब आर की जब हम वैल्यू निकालेंगे, सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बिकॉज फॉर 2 इट इज मिनिमम। तो ये ऐसा हमारे हमने फर्स्ट सेल की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। जैसे फर्स्ट सेल की वैल्यू पुट की, वैसे आपको सेकेंड सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकेंड सेल के लिए आई 1 है और जे 4 है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 2, 3 एंड 4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लास्ट रो, जिसमें खाली एक ही सेल है, W04। अब W04 की कंडीशन में, W04 के लिए हमने सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो W की वैल्यू हमको मिल गई। अब CI, J जब हम निकाले तो हमको कितने वैल्यूज मिलने वाले हैं के 0 से ग्रेटर और 4 से लेस और इक्वल, मतलब के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3 एंड फॉर के वैल्यू 4। सो 4 वैल्यूज वी विल गेट। ये जब के की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 2 के की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 की, यहाँ पे वैल्यू 4। ओके, तो के की ये वैल्यू 1 ये फॉर्मूले में डालो। ओके, वापस सेकेंड टाइम डालो, जब के की वैल्यू 2 है तो आपको ये मिल जाएगा। तो लाइकवाइज वी हैव टू जस्ट पुट दैट वैल्यू, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में ये C00, C14, ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलने वाली है सारी, इस टेबल में से। इस टेबल में हर एक जो आपने लिखा हुआ है, हर एक की वैल्यू, क्योंकि प्रीवियसली हमने उसको कैलकुलेट करके स्टोर करके रखा है टेबल में, वो वैल्यूज को यूज करके यहाँ पे पुट करके आपने क्या किया, वैल्यूज निकाला। अब यहाँ पे ये केक की वैल्यू जब 1 थी तब 19 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये सॉरी प्लस का सिंबल है, ये आ गया 25। तो सबसे लोएस्ट क्या है 16, सो ये 16 मैंने लिख दिया। प्लस ये 16 किसके रिलेटेड आ गया, W04 जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था, वो 16 लिख दिया। तो टोटल आंसर क्या आ गया हमारा 32। और कौन से वैल्यू के लिए आया, के इक्वल टू 2, ये वैल्यू के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू आई है। तो इसके लिए के आर की वैल्यू वापस क्या हो गई 2। अब ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। सो नाउ ये सी का जो 32, ये क्या बता रहा है कि जो भी आप ओबीएसटी ड्रॉ करने वाले हो इस टेबल को लेके, उसका टोटल कॉस्ट कितना होने वाला है, 32 होने वाला है। अब ट्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, किसको रूट पे लेके आना है, कौन सा एलिमेंट है जो रूट पे आएगा। सो रूट के लिए हमको क्या यूज होता है, आर की वैल्यू। आर की जो वैल्यू आई है, ये आपको बताता है कि कौन सा आइडेंटिफायर आपके रूट पे जाने वाला है। तो कौन क्या वैल्यू आई है 2, तो 2 नंबर का जो एलिमेंट है ये आपके रूट पे लगने वाला है। सो here we know that the identifier is do, if, int and while। तो इसमें do जो है ये फर्स्ट नंबर है, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर एंड दिस इज फोर्थ नंबर पोजीशन। तो हमको पता चला है कि भाई आर इक्वल टू जो 0,4 है, इसकी वैल्यू क्या थी प्रीवियस टेबल में 2। तो सेकेंड आइडेंटिफायर जो है इफ, ये हमारे रूट पे लग गया टेबल के। अब ये लेफ्ट और राइट निकालने के लिए भी उन्होंने कुछ फॉर्मूला दिया है कि लेफ्ट नोड जो है वो फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला है R ऑफ I कॉमा K-1। अब इस केस में ये हो गया हमारा I, ये हो गया हमारा J एंड ये हो गया हमारा K। ओके, तो अब यहाँ पे I यानी क्या आ गया, 0 आ गया, और K-1 मतलब 2 - 1 क्या आ गया, 1। तो ये पोजीशन क्या आ गई हमारी, 0,1, ये पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। सो 0,1। तो अभी हमको वापस प्रीवियस टेबल में जाना है। प्रीवियस टेबल में R ऑफ 0,1, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 1 थी, मतलब फर्स्ट आइडेंटिफायर जो है ये कहाँ पे लगने वाला है आपके इफ के बाद लेफ्ट साइड के पोजीशन में जो है फर्स्ट आइडेंटिफायर, यानी क्या डू लग गया। अभी राइट साइड के लिए फॉर्मूला है R ऑफ K, तो K यानी क्या, रूट पे K की वैल्यू 2 थी और J की वैल्यू क्या है 4, दैट इज R ऑफ 2,4। तो अभी 2,4 पे अगेन टेबल पे जाके आपको चेक करना है कि 2,4 पोजीशन के लिए वहां पे वैल्यू क्या थी, तो वो वैल्यू 3 थी। 3 मतलब क्या, थर्ड नंबर पे क्या है हमारा इंट, वो लगेगा। नाउ सेम लाइकवाइज यहाँ पे R ऑफ K, यानी 3,4 की पोजीशन है, जो 4 आ गई है, इसके लिए while हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ट्री ऑफ OBST। I hope you got the OBST very well. Thank you so much for watching.